All right. Hi, everyone. All can hear me? Yes, sir. All right. All right. Great. It's okay. Most of you have joined, and people will keep joining. Till then, let's start. So, before starting, who will tell me what we have gone through in motion? मतलब हमने मोशन में कितना कुछ कवर किया? I'm talking about the basics of motion. Means how much till what place you have completed motion. Talking about the complete till the motion equations. Okay, so basics I assume the basics are clear to you all. So today what we will do some advanced study on the motion, including the use of derivatives. अब जैसे कि हमने मोशन कंप्लीट किया है, मीन्स नॉर्मल क्लासेस की बात कर रहा हूँ, नॉट रिलेटेड टू द फाउंडेशन, तो उसमें हैव यू ऑल यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन? एनी क्वेश्चन? नो, यू हैवंट डन. ओके, all right. So if we start with the types of velocities, can anyone tell me what are the types of velocity? Initial and final नहीं बोलना है, because those are the velocities at the start and at the end. Yes, we have average velocity and the instantaneous velocity. Okay, that's correct. So average velocity, what it is? It is the change in displacement with respect to time, or you can just say displacement with respect to time. Okay, so I can write average velocity as change in position with respect to time. Right, this is clear. Now, since you all have gone through differentiation and you all must have known the meaning of dy by dx. What is this dy by dx? We read it as rate of change of y with respect to x, or you can say instantaneous rate of change of y. Right, यही चीज जो होता है ना, this only we call it as instantaneous thing. ये जो है, how we will read this, this is also rate of change of position, but this rate is the normal rate we are talking, because this change is not very small. ये चेंज कैसा हो सकता है? जैसे कि हो सकता है 3 - 2, 5 - 2, या फिर 5 - 3. ये जो चेंज आएगा ना, दिस चेंज इज क्वाइट बिग. जैसे कि ये 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये चेंज क्या है, थोड़ा बड़ा है. बट इफ वी टॉक अबाउट दिस dy, ये कैसा चेंज है? दिस dy is very small change, right? वैसे ही डेल्टा y क्या है? दिस इज जस्ट अ चेंज. डेल्टा y इज जस्ट अ चेंज. तो dy का वैल्यू क्या हो सकता है? जैसे 0.0000 ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम चला जाए, या फिर 1 करोड़ टाइम्स 0 लिख दें और लास्ट में 1 लिख दें. यू कैन सी हाउ स्मॉल दिस वैल्यू इज. तो चेंज कुछ ऐसा ही रहेगा. So instantaneous velocity, how do we define it? This is defined as the velocity at any instant of time. Velocity at any instant of time. We can say at any particular instant of time.
and instantaneous velocity we write it as ds by dt. Okay, now who will tell me which is the most appropriate velocity from which we get exact right information? Is it average velocity or instantaneous velocity? So can you repeat? Which velocity gives us more accurate result? Is it average velocity or the instantaneous velocity? Instantaneous velocity. Instantaneous velocity, yes. So how? Let us see the example here. Let us say this is a boy who starts from home and goes to school. So he has different speeds in between. जैसे मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर फिर 15 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, all in meter per second. So what does this indicate? That depending upon the situation, depending upon the condition of the road, the boy is having different speeds at different points. So let us say in 1 second its speed is 10 meter per second. After 1 second its speed is 20. After 1 second its speed is 15. And then after 1 second its speed is 10. So what does this suggest? That if I say what was the speed of an object at t equal to 2 seconds, you all can say very simply 20 meter per second. If I ask what was the speed at t equal to 3 seconds, let's suppose, you will say it is 15 meter per second. But at the same time, let us say the distance here was 100 meters and the time taken to go from here to here is, let's say, 4 seconds. So now what will be the average speed or average velocity? Let's find, because it's moving in a straight line only. The average velocity कितना होगा यहाँ पर? 25, because displacement by time, so 100 by 4 and that is 25. So you can see average velocity is just giving you one result, right? हमने क्या किया? Displacement निकाला, time से divide किया. But this is not the actual speed that we are having at different instances. इस instant पे देखो 10 है, इस instant पे 20 है. So if we want to get the exact right information about the speed of an object at any particular instant of time, then that is obtained using instantaneous velocity. ये सभी को clear है regarding the types of velocities? Then we will do some questions based on them. ये समझ में आ रहा है कि हम instantaneous की जब बात कर रहे हैं, then we involve differentiation to deal with that, even to solve that. और यहाँ पर normal change की बात करते हैं. ये normal change we can calculate. ये भी देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा नहीं कुछ नया कॉन्सेप्ट है. दिस इज ऑल्सो चेंज इन पोजिशन बाय चेंज इन टाइम, बट द कंडीशन इज व्हेन दिस टाइम टेंड्स टू जीरो. टाइम टेंड्स टू जीरो का मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है. इट इज अप्रोचिंग अ वैल्यू विच इज वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो. ये देखो ये नंबर जो है, अगर मैं कह दिया कि दिस नंबर इज एक्स, so I can say x tends to 0. This statement I can write alternatively as x tends to 0, है ना? बहुत ही छोटा वैल्यू है. Okay, great. Then we will do the questions. So let us say position of an object depends on time
according to the relation as under. कैसे डिपेंड कर रहा है देखो, s इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t. Now we have to find the velocity between t equal to 0 and t equal to 3 seconds. And then you have to also find the velocity at t equal to 0 second, 1 second, 2 seconds. So everyone will tell me, ये जो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट में कैन एनीवन टेल कि ये एवरेज निकालना है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है? फॉर द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट के लिए एवरेज निकालना है. व्हाई वी नीड टू, हाउ डू वी नो वेदर वी वांट टू फाइंड एवरेज और इंस्टेंटेनियस? रेंज देख लो. फर्स्ट पार्ट में देखो, वी हैव आस्क्ड टू फाइंड वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 to 3, राइट? बिटवीन मतलब जैसे यहाँ होम से स्कूल गया, सो दिस इज बिटवीन 0 to 4 seconds. If I ask what is the velocity at t equal to 0 या at t equal to 1 और at t equal to 2, मतलब ये जो है ये इंस्टेंटेनियस है ना? I am asking about the velocity at any particular instant of time. Okay, yes, so everyone will find out. सभी कोई करेंगे. चलो एक आंसर मिला मुझे. एटलीस्ट 10 आंसर्स आई नीड. एटलीस्ट 50% बच्चे तुरंत करके देंगे. देखो बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट. फर्स्ट में ये हमने पता कर लिया ना कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालना है. मीन्स दैट वी आर गोइंग टू यूज v इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. और यहाँ पर क्या यूज करेंगे? v इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी. चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देन आई विल गिव यू ऑल द अदर क्वेश्चंस टू डू. सो फर्स्ट वन, इफ यू सी, हमें क्या निकालना है? चेंज इन पोजीशन. और ये जो रिलेशन है हमारे पास, s इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t. इफ आई नो द वैल्यू ऑफ t, आई विल गेट द पोजीशन, राइट? तो जब t 0 है तो पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का? when t is 0, just put 0 here, you will get s is 0. जब t 3 पुट करेंगे मतलब फाइनल पोजीशन क्या है? so if you put t as 3, you will get 3 times 3 square minus 2 times 3, right? जब ये t equal to 3 होगा, so this will come out to be
27 minus 6, that is 21. तो पोजीशन क्या है? 21 when t is equal to 3. So guys, now you can easily find out, you can easily calculate the change in position here. क्या होगा change in position? 21 minus 0 है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. और कैसे निकाला फाइनल और इनिशियल पोजीशन? बाय पुटिंग द फाइनल एंड इनिशियल टाइम. बिकॉज you looking at this equation, what we can understand, this is giving us relation between position and time. तो अगर मुझे टाइम पता रहेगा तो पोजीशन निकाल सकता हूं. एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज 3 minus 0. तो ये कितना हो गया? 7 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है सभी को एवरेज? देन वी विल मूव टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. कुछ नया हमने यूज किया एवरेज में? नो, वी जस्ट कैलकुलेटेड द चेंज. Yes, Pratika, you have any question? You raise the hand. कुछ क्वेश्चन है? We have to find, okay, I'll explain again. We have to find velocity. That means we have identified this is average velocity. Average velocity कैसे पता किया? The time is given and I have asked you to find between these times. If I will ask find velocity at this time, then that is instantaneous. Okay, first thing is clear. Now what we have with us, s is equal to 3t square minus 2t. So this, what does this suggest? This equation gives us the idea that I can get the position if I have information about time. So let us say अगर मैं पूछा ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, what is object's position, what is object's position at t equal to 1 or at t equal to 2, you can easily find out, put the value of t what is given. Now similarly what we have to find, average velocity. क्या होता है फॉर्मूला? change in s by change in t. So how do we find change in s? तो पहली चीज है पोजीशन, ये पोजीशन है राइट. ऑब्जर्व, आई हैव गिवन यू पोजीशन. तो अगर मैं पोजीशन दे दिया तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे? फाइंड द पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. तो टाइम क्या है? 0 है और 3 है. तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या होगा? पुट 0 हियर, यू विल गेट पोजीशन इज 0. t इक्वल टू 3 पे पोजीशन क्या होगा? पुट t इक्वल टू 3, यू विल गेट 21. तो अब चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? 0 से 21 आया, दैट मीन्स 21 माइनस 0. चेंज इन टाइम क्या हुआ? 0 से 3, मतलब फाइनल 3 माइनस इनिशियल 0. सो आंसर इज 21/3, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया सभी को? यस. velocity can also be negative because it depends upon direction, right? Velocity vector quantity है ना, it depends upon direction. We are going to move in detail about vectors in upcoming sessions, but vectors के basics तो पता होंगे ना. This is having magnitude and direction, that's all. अभी तक के लिए बस इतना ही. तो अगर मैं कह दिया an object is moving to the right at 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं ऑब्जेक्ट मूविंग एट लेफ्ट कैसे स्पेसिफाई करूंगा? -10 देके. तो ये प्लस और ये माइनस जो है, दैट इज गिविंग अस आइडिया अबाउट द डायरेक्शन. कि प्लस अगर राइट है तो माइनस लेफ्ट होगा. ओके, एंड नाउ नंबर 2,
Here we have to find instantaneous velocity. So there is nothing new in this number 2. We have been consistently doing this number 2 till now. So we have s is equal to 3t square minus 2t. So velocity instantaneous क्या होगा? ds by dt. So d by dt of s की जगह क्या रखेंगे? 3t square minus 2t. And after differentiating, what we get? 6t minus 2. So what is the question? Find velocity at t equal to 0, 1 and 2 seconds. तो हमें velocity का expression मिला ना? 6t minus 2. So just put these values of t and get the answers for instantaneous velocities at these instants of time. So at t equal to 0 पे क्या होगा instantaneous velocity? 6 into 0 minus 2, that is minus 2 meters per second. At t equal to 1 क्या होगा? 6 into 1 minus 2. बस इस t पे पुट करते जाओ, जिस जिस टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए, just keep putting that value of 2, this t. So 6 minus 2, that is 4 meter per second. At t equal to 2 seconds, what we will do? Just put 6 into 2 minus 2. So we get 10 meter per second. Yes. Understood to all how to deal with the situations related to instantaneous and average velocities. Okay, तो एक और क्वेश्चन करते हैं. So this question you all will do. Question is find velocity of the object if position is dependent on time as 3t to power 5 minus 7 t square plus 2. S is position and t is time. So find velocity of the object at t equal to 2 seconds. That's first. Between t equal to 0 to t equal to 1 second. ये सभी कोई करेंगे. जिनको भी डाउट्स हैं दे कैन लेट मी नो. ओके आई कैन सी फ्यू आंसर्स बट सभी कोई करेंगे. लो और टाइम लो, 1-2 मिनट और लेते हैं, बट आराम से करना है. ये क्लियर होना चाहिए हमारा. व्हेन टू यूज डिफरेंशिएशन एंड व्हेन टू यूज नॉर्मल कैलकुलेशन.
सभी को करना है ये। So let me know how many of you have done. Yes, yes, we will check. हाँ, सभी को करेंगे, कोई बात नहीं। जो कर रहे हैं वो करेंगे। So last we will say 30 seconds and then we will start with the discussion. 14 people have done. See, the question is exactly same what we discussed, but numerical values changed. There's nothing new to it. Chalo, let us discuss this. You have to find velocity at t equal to 2 seconds. So for this you will differentiate. तो v क्या हो जाएगा differentiate करने पे 15t to power 4 minus 14t, right? Just differentiate this. So at t equal to 2 ढूंढना है, मतलब यहाँ पर t के जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है. So you'll get 15 into 2 to power 4 minus 14 into 2. ये क्या हो जाएगा 240 minus 28, that is 212 मीटर पर सेकेंड. तो ये 212 मीटर पर सेकेंड बहुतों को मिला है. ऑल आर राइट. नाउ at this point we will need to find the average velocity. क्या होगा change in position by change in time. तो position कैसे निकालते हैं? At t equal to 0, put here 0. You will get the position as 2. At t equal to 1, put here t as 1. So you will get 3 minus 7 plus 2. ये हो जाएगा -2. राइट. s मिल जाएगा -2 at t equal to 1 सेकेंड. तो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ है 2 पे, फाइनली गया कहाँ ऑब्जेक्ट -2 पे. तो चेंज क्या हुआ फाइनल माइनस इनिशियल. तो -2 बाय चेंज इन टाइम क्या होता है 1 minus 0. सो दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड. राइट. तो ये भी बहुतों को मिला है एंड दे आर ऑल करेक्ट. Okay, so observe here, there might be situations when average velocity and instantaneous velocity may be same. That depends upon the numerical expressions what we are taking or what is given.
So let us do another question. Okay, so everyone will select this. And the time limit given for this is not more than 2 minutes. चलो 2 3 कर लेते हैं, बट सभी कोई करेंगे. एकदम जल्दी जल्दी करेंगे सभी कोई. सभी कोई करेंगे.
Okay, let us see now. All of you would have definitely been done with this question. What it says, a particle here moves in a straight line at a time t. The distance is given. How long would the particle travel before coming to the rest? That means they have given you the idea that the object comes to rest. We need to find out in how much time the object comes to rest. So that means definitely we need to find velocity. So velocity will be dx by dt. So this will be 12 minus 3t square. Now this velocity is 0 because the object comes to rest. So 3t square is 12 and t square is 4. So t will come out to be plus minus 2. So time of course cannot be negative. So t will be 2 seconds. Right? Time will be 2 seconds. So question is how long would the particle travel? That means we will find out using this information, put it here to get how much distance it traveled. So x is 40 plus 12. Instead of t, just put 2 minus 2 cube. So what we get? 40 plus 24, that is 54 minus 8. Let us check with the calculation once again. At a time, the distance is this. How long would the particle travel before coming to the rest? So 12 minus 3t square. So we get 4. So t is 2. So if you put here 40 plus 24, so we get 54 minus 8. So that comes out to be 46. ये क्या 46 मिला सभी को क्या? 46 मिला किसी को? जिनको 46 मिला रेज द हैंड. रेज द हैंड. 40 किनको मिला? You have given me 56, right? जो लोग 56 दिए, they will have to tell me. अपार्ट इनको छोड़ के ये बताओ मुझे बाकियों को 46 किसी को मिला? हाँ 64, नॉट 46. 24 प्लस 40 हो जाएगा 64 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 56, है ना? तो क्या 56 आंसर होगा? हमें इनिशियल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कहाँ है ये नहीं देखना होगा. वी हैव टू सी ये 56 मीटर क्या मिला एट t इक्वल टू 2 हमें मिला. सो x वाज 40 plus 12t minus t cube. So we have got that at t equal to 2 seconds, object comes at rest. Object at rest. तो जब ये रेस्ट पे आता है तो फाइनली मतलब 2 सेकेंड्स में ये कहाँ किस पोजीशन पे जाता है? 56 मीटर. तो इनिशियली किस पोजीशन पे है वो भी तो देखेंगे ना, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल्स. वी डोंट नीड टू फाइंड द पोजीशन. अगर पोजीशन पूछता तो हम 56 कहते. नाउ सिंस द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड, तो हमें जीरो टाइम पे भी पोजीशन देखना है. जीरो पुट करो यहाँ पर. एट t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा? 40 मीटर्स पे, राइट? तो अगर हम देखें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, can't we just say it is 16 meters? डिस्टेंस तो 16 मीटर ही ट्रेवल किया ना. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट
it has traveled to a different position at different instants of time. So 16 meters will be the right answer. Maximum of you, if I share the poll result here, maximum of you have answered C. तो क्या C correct है? C is not right. Our right answer is 16 meters. ये समझ में आया सभी को? Yes, what doubt you have, Mohil Varman? What doubt you have? इस क्वेश्चन में डाउट है? Were you there when I was explaining? कि अगर एक एक करके अगर कहोगे कि फिर से समझाने के लिए, तो नथिंग फॉर मी, इट्स गोइंग टू बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू ऑल. जहां पर अगर डाउट आता है ना, 2 लाइन समझने के बाद 3 लाइन, तो वहीं पे पूछो ना जहां पर डाउट आता है. So I can explain you that line again. Am I going too fast, guys? Tell me. I just share. देखो इस क्वेश्चन को तो जितना टाइम लिया हमने, I took 3 to 4 minutes to, I gave you all 3 to 4 minutes to solve, to look at it carefully, and then इसको मैंने लगभग 2 to 3 minutes में सॉल्व किया है. ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन में. वी हैव डायरेक्टली यूज द रिजल्ट. बस मैंने ये पुट करके समझाने के लिए ज्यादा टाइम ले लिया. तो अब ये समझ में तो आना चाहिए. Mohil Varman, at what point you have the doubt? Let me know. If you say full question to explain again, already almost 10 minutes we wasted on this question. अब फिर से हम करें. How many of you want me to explain again? अच्छा कौन सा स्टेप? लेट मी नो मोहित वर्मन, विच स्टेप? ये वाला लास्ट वाला? क्या ये स्टेप कह रहे हो? t इक्वल टू 2 तक समझ में आया? ओके, t इक्वल टू 2 तक समझ में आया. तो तुम्हारा व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? What answer you are getting? How 12 minus 3t square is 0? How long the particle travels before coming to rest? That means the velocity is 0 at some point of time, and we are finding that time. It is given in the question that how long would the particle travel before coming to rest. रेस्ट पे आने से पहले पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा? So when it is given, it is at rest, its velocity is 0. यस, ये रिकॉर्डिंग तो अपलोड होते ही है ना. तो बताओ इसमें, देखो यहां तक समझ में आया ना? अगर यहां तक समझ में आया तो हम क्या करेंगे? What is this 2 second which we have found? This 2 second is the time at which the velocity becomes 0, right? 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाता है. ये इंफॉर्मेशन है.
That means object comes to rest. The question was how long would the particle have traveled? तो अब रेस्ट पे आते आते पार्टिकल कितना ट्रेवल कर गया, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो पार्टिकल कितना ट्रेवल किया, इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन पोजीशन, राइट? हाउ मच द पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड. सो ट्रेवलिंग डिस्टेंस अगर हम कहें, तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस क्या होगा? चेंज इन पोजीशन. लेट अस से फॉर एग्जांपल you move from point 3 to point 9. So how much distance you have moved? 9 minus 3, right? 9 minus 3. तो उसी तरह से t equal to 2 सेकेंड पे हमारा पोजीशन क्या है? दिस इज पोजीशन, दे हैव गिवन यू x इज पोजीशन. तो t इक्वल टू 2 पे x क्या है? 64. एंड t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ है? पुट t as 0 here in this equation. So you will get x as 40, right? 60. कैसे मिल गया? 56, राइट? 56. t equal to 2 पुट करो, t equal to 0 पुट करो, you will get the positions at these times. अब position मिल गया, so just find the change to get the idea about how much distance it has traveled. So it will come out to be 16 meters. Now tell me, सभी को समझ में आया? मुइल वर्मन will tell me, क्या तुम्हें समझ में आया या फिर कोई डाउट है तो आस्क मी अगेन. Moil Verman understood this one. If you do not tell me, how can I understand? कुछ डाउट है? ओके, चलो ठीक. So we will do another question. चलो ये करते हैं, सभी कोई करेंगे. तो अब से अगर कोई डाउट होगा ना, इंटरप्ट मी एट दैट स्टेप ओनली, सभी को, ताकि हमारा टाइम सेव होगा.
ये सभी कोई करेंगे? जस्ट 45% ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड। सभी कोई करेंगे ये? So let us see what the question here is. So let us see. Most of you, I can see D you have selected. A और B almost equal selected. Question क्या है देखो? Distance traveled by an object along a straight line in time t is given by this information. ये distance है. The initial velocity of the object is initial velocity. That means velocity at t equal to 0. This one you have to find. तो डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या वेलोसिटी मिलेगा? सो -4 प्लस 10t। ये डिफरेंशिएट किया हमने, क्या किया? ds/dt। तो हमें मिला वेलोसिटी। एंड क्वेश्चन इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? u, दैट मीन्स t जब 0 है उस समय जो वेलोसिटी होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो आंसर विल बी -4 यूनिट। ये आप लोगों को अपडेट हो जाएगा कि क्या चैप्टर का टेस्ट होगा। सून यू विल बी अपडेटेड। ये क्वेश्चन समझ में आया? कितनों को समझ में नहीं आया? लेट मी नो दैट। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया दे विल आस्क मी कहाँ डाउट है। चलो ऑलमोस्ट सभी को समझ में आया, दैट्स ओके। लास्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, राइट? क्वेश्चन इज फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब हमें मिल गया डिफरेंशिएट करके, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर पूछा है मतलब यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 0, दैट मींस व्हेन द टाइम स्टार्ट्स। तो टाइम इसमें 0 पुट किया तो क्या मिला? -4 प्लस 10 इंटू 0, तो ये कट गया, बचा फिर -4 यूनिट डी।
ठीक है, अब समझ में आया शीशा -4 कैसे मिला? Sir, can you explain once again? क्या डाउट है तुम्हें? क्वेश्चन में क्या डाउट है? Sir, U -4 कैसे आया सर? वेलोसिटी हमें मिला ना -4 + 10t. We have to find out what you have to find out. क्या निकालना है क्वेश्चन में? Sir, initial velocity. और क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी? Sir, velocity at the starting. तो स्टार्टिंग मतलब t = 0. तो पुट t = 0 here, you will get -4. अब समझ में आया? Yes sir, अब समझ में। Okay. So let us do another one. So today we have to complete all about these kinds of questions to find velocities. चलो ये करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन का बेसिक्स हैव यू ऑल गाइस डन? No sir. नो, तो ठीक है, हम ये इंटीग्रेशन के बाद करेंगे। सो वी विल डू वन थिंग, नेक्स्ट क्लास में ना हम इंटीग्रेशन के बेसिक्स पहले देखते हैं, फिर वेक्टर्स के बेसिक्स देखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दीस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो मूविंग अहेड, जैसे हमने देखा कि वेलोसिटी इज ds/dt, राइट? वेलोसिटी इज ds/dt। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है ना, इफ वी हैव जस्ट गिवन टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट मींस वो कौन सा वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज दे आर आस्किंग मी टू फाइंड एट दिस स्पेसिफिक टाइम। So similarly we can say acceleration as dv/dt। देखो एक्सीलरेशन के भी दो टाइप होंगे, वन इज एवरेज एक्सीलरेशन, अनदर इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ना अभी तक, a = v - u/t, व्हाट वी आर फाइंडिंग टिल नाउ एवरेज एक्सीलरेशन। तो अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो क्या निकलेगा? dv/dt। okay, so we will use this information and continue with this question। तो थोड़ा सा मिक्स अप कर लेते हैं क्वेश्चंस को। so let us say position s is given by 3t³ - 2t square। okay, position is dependent on time t। you all have to find the velocity of the object at the time when its acceleration is 0। its acceleration is 0। चलो ये करो सभी कोई। हाँ, धीरे धीरे सब करेंगे, बट फर्स्ट थिंग इज कि हम इंटीग्रेशन और वेक्टर्स में चलेंगे। देखो ट्रिगोनोमेट्री जैसा कह रहे हो ना, मैं चैनल बताया था याद है? मैं अपने तरफ से भी कुछ कुछ वीडियो जैसे बेसिक मैथ्स हो गए या फिर मोशन के देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी वीडियोस वहां पे अपलोडेड हैं। तो बेसिक मैथ्स में यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दैट। अच्छा एक काम करो, बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास वॉच दैट इंटीग्रेशन वाला एंड देन वी विल डू दैट इन द क्लास। दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव गाइस। मैं बेसिक मैथ्स का लिंक शेयर कर देता हूँ। तो बेसिक मैथ्स में एक डिफरेंशिएशन है, एक इंटीग्रेशन है और एक ग्राफ के बारे में है कि किस सिचुएशन में वी रिक्वायर स्लोप
and under what circumstance we require area. चलो आज ट्रिगोनोमेट्री पे हम पूरा बना देंगे उस पे, like 40-45 minutes का the complete video will be there on trigonometry. Okay, so do this question till now. Okay, Shivansh, I look at it now. Later on, after the class, I will look at it. Generally, वो मैं Saturday, Sunday को सभी doubts देखता हूँ. So no problem to worry. If you inform me, I look at that. नहीं तो मुझे याद नहीं रहते before Sunday. तो ये बेसिक मैथ्स वाला जो प्लेलिस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ वो सभी कोई देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हर चीज क्लास में आपके कवर हो जाएंगे, बिकॉज यू कैन सी ज्यादातर इन फिजिक्स मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन वाला वीडियो भी देखेंगे, बिकॉज दैट दिस इंटीग्रेशन इज मेंट फॉर दोज पीपल हु हैव कंप्लीटेड डिफरेंशिएशन. तो आप लोगों का डिफरेंशिएशन हो गया है, यू विल सी इंटीग्रेशन and slope and area. Just watch it guys to revise the motional concepts. ठीक है, मैं अभी शेयर कर दिया लिंक. और लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग तो आपको अपलोड होता ही है. ये एड ऑन थिंग्स हैं जो मुझे लगता है कि मैं क्लास में नहीं पढ़ा पाया, या फिर मैथ्स के हैं, या फिर थोड़े से अगर देखोगे तो केमिस्ट्री के मूल कॉन्सेप्ट के भी डाल देता हूँ, बिकॉज थोड़े थोड़े जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो यू विल फाइंड दोज थिंग्स. चलो, लेकिन ये क्वेश्चन करना है. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन. तो ट्रिगोनोमेट्री हम फिजिक्स में कवर नहीं करते हैं, कहीं पर सिलेबस में नहीं है ट्रिगोनोमेट्री हमें कवर करना है. तो आई विल डू वन थिंग, आज मैं इसका बेसिक्स नहीं, फुल ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का मैं बनाता हूँ. इसका एक्चुअली मैंने एक पार्ट कंप्लीट किया हुआ है, सो जस्ट 3 more parts are there, so I will complete this by today, so you all can watch that. ओके, ये जल्दी से करेंगे. ये क्या मैं ऑप्शन क्यों दे दिया इसमें? देयर शुड बी नो ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. यू आर रिक्वायर्ड टू जस्ट फाइंड इट. और बहुत लोग ऑप्शन भी इसमें सेलेक्ट किए हैं, सी और डी. क्या आप लोग कह सकते हैं सी और डी किन्होंने सेलेक्ट किया, क्यों किया सेलेक्ट? इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन ही नहीं था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं था, वो गलती से पोल खुल गया. जल्दी से करो. फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट when its acceleration is 0. पहले क्या होता था? फाइंड वेलोसिटी एट दिस टाइम, राइट? तो मतलब यहां से देखो, अगर वेलोसिटी हमने निकाला, लेट अस फाइंड द वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी निकाला तो कैसे निकालेंगे? ds/dt. तो ये आप लोग कर लेना. हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 9t² - 4t. तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? हाउ विल वी बी एबल टू फाइंड वेलोसिटी? ओनली इफ वी नो द टाइम, राइट?
तो टाइम पता नहीं है, बट कुछ अलग इंफॉर्मेशन है यहाँ पर. लेट्स ट्राई टू यूज दैट. व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज 0, तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सीलरेशन भी टाइम पे डिपेंड करेगा. तो जब एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा एंड गिवन है कि एक्सीलरेशन 0 है, तो क्या इसको हम पुट करके टाइम निकाल सकते हैं? यस, and we can find that time and put it here. We will get the velocity, right? Let us find out the acceleration. Acceleration के लिए क्या करेंगे? अब dv by dt करेंगे. तो चलो ये भी आप लोग कर लो. We will get 18t minus 4. So given, you have to find the velocity when acceleration is 0. तो मतलब it is just same as when time is 4 by 18. So just put this 4 by 18 या फिर 2 by 9 here. You will get your answer. ये सबको समझ में आया? जिनको नहीं आया, raise your hand or tell me in the chat. We will look at it once again. हमने मोशन का मॉड्यूल पूरा किया है. ओके, सो आकाश, हाउ टू फाइंड टाइम थ्रू एक्सीलरेशन? ये देखो क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन इज 0. तो अगर एक्सीलरेशन को 0 पुट कर दिए, ये क्या मिल रहा है? 18t minus 4 कैसे मिल रहा है? इसको डिफरेंशिएट करके. तो एक्सीलरेशन का दो वैल्यू है, एक तो ये है और एक 0 भी दिया हुआ है. मतलब जो एक्सीलरेशन निकला ना, उसको 0 अगर करेंगे तो कब 0 है उसका टाइम निकल जाएगा, राइट? तो ये टाइम निकल गया हमारे पास कि इस टाइम पे क्या है, एक्सीलरेशन इज 0. तो वो टाइम को हमने इसमें पुट कर दिया और हमें मिला वेलोसिटी एट दैट टाइम. एट व्हाट टाइम? वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0. ठीक है, ओके सर. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन. ये सभी सही सही करेंगे. You have to find position is 3t plus 2 and just 1 minute question, बस 1 मिनट का है. So find acceleration of the object. तो ये रहा and the time starts now. A हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, C हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और D हो गया नन ऑफ दीज. ध्यान से करना है, 1 मिनट का क्वेश्चन है. %28 वोटेड, टाइम रिमेनिंग 40 सेकेंड्स. सभी कोई करेंगे. लास्ट 10 सेकेंड्स सभी कोई करेंगे. Okay, let us see. B, most of you, that's right. अब देखो A, C और D 100% जो जो सेलेक्ट किए हैं, they all have guessed it definitely, है ना?
तो ये पोजीशन टाइम है, डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलेगा ds/dt से। तो क्या होगा वेलोसिटी 3, राइट, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 3t का डिफरेंशिएशन 3 होगा। अब वेलोसिटी हमारे पास 3 है, एक्सीलरेशन क्या होगा dv/dt, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन 0 होगा। द मोस्ट इजी क्वेश्चन। ओके, फिर से 1 मिनट क्वेश्चन, जिनको समझ में नहीं आएगा दे विल टेल मी। You have to find और select the correct option। अब इसको ध्यान से करना है, select correct option। डिस्प्लेसमेंट दे दिया 6t + 3, ये ऑब्जेक्ट 1 का। ऑब्जेक्ट 2 का वेरिएशन क्या दिया, 6t³ + 2t। तो ऑप्शन ए यू हैव टू सेलेक्ट इज, ये रहा ऑब्जेक्ट 1 के बारे में, ये रहा ऑब्जेक्ट 2 के बारे में। सो 4 ऑप्शंस वी हैव हियर, ध्यान से सेलेक्ट करना है ए बी सी डी। पहला, ऑब्जेक्ट 1 ट्रेवल्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो चलो यूनिफॉर्म को मैं यू लिखूंगा, यूनिफॉर्म को यू लिखूंगा, नॉन यूनिफॉर्म को आई विल राइट एन यू। ऑब्जेक्ट 2 यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, and then uniform. So you all have to select which one is right choice, and for this you have 2 minutes. तो जल्दी जल्दी सभी कोई करेंगे। एक बार फिर से अगर रिकैप्चुलेट करा दूं तो यूनिफॉर्म का मतलब समझ लो कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल हो गया। यस शिवांश, यू कैन मार्क इट हियर सो दैट आई बी श्योर कि कितने परसेंट इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। बस 50% हुआ है, जल्दी जल्दी करेंगे सब। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमें एक्सीलरेशन को देखना है कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ये याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं दिया होगा। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें तो वेलोसिटी कितनी होगी, डिफरेंशिएट 6, एक्सीलरेशन कितना होगा, डिफरेंशिएट v, सो दैट विल बी 0। तो ऑब्जेक्ट 1 का एक्सीलरेशन 0 मिलता है। ऑब्जेक्ट 2 का अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट 2 का क्या मिलता है, वेलोसिटी इज 18t² + 2। जस्ट डिफरेंशिएट,
फिर एक्सीलरेशन कैसे मिलता है, v को भी डिफरेंशिएट करेंगे, 36t मिलेगा हमें, है ना। तो ध्यान से अगर देखें इस एक्सीलरेशन और इस एक्सीलरेशन में कांस्टेंट कौन सा एक्सीलरेशन है, ये देखो ऑब्जेक्ट 1, ये देखो यूनिफॉर्म है। ऑब्जेक्ट 2 को देखें, सो दिस एक्सीलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन चेंज होगा, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट फिट, ऑप्शन सी इज द राइट फिट। तो क्लासेस तो हो गए आज के, बट मेन बात ये है कि मुझे जानना है, जस्ट यू कैन मैसेज मी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो चैट में प्राइवेटली, किनको डाउट है या फिर टेल मी योर ओपिनियन। क्योंकि देखो अगर आप फ्रैंकली बताओगे, फ्रैंकली टेल मी, देन अकॉर्डिंगली ओनली आई विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लासेस ऑनवर्ड्स। क्या मैं फास्ट चल रहा हूँ या फिर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, लेट मी नो दैट। तो कुछ मुझे लगेगा अगर एक्स्ट्रा लेना है सेशन तो मैं वो भी अरेंज करूंगा। तो सब बच्चे क्या करेंगे, अभी चैट में लिखना है तो लिखो, ठीक है, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, है ना। आई विल नॉट ब्रिंग दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, but I'll even not take your name, but yes, I will definitely try to make you understand, ठीक है। तो या तो अभी चैट पे लिख दो या फिर आराम से सोच के व्हाट्सएप पे लिखना कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, अगर ये हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, ये हमारा बेसिक्स है, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं मोशन पढ़ने के लिए, और आगे चलेंगे ना तो मोशन थोड़ा ज्यादा एकदम कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। So better let me know, and yes, see you all guys in the next class। और सभी कोई वो बेसिक मैथमेटिक्स वाला देखना है, ठीक है। उसमें मैं आज ट्रिगोनोमेट्री का ऐड कर रहा हूँ, तो गाइस ट्रिगोनोमेट्री भी आप लोग कंप्लीट कर लो। 1 chapter विल बी डन इन मैथ्स फॉर यू ऑल, ठीक है। बाय एवरीवन। बाय बाय। और किसी को कोई घबराना नहीं है, जैसा लगता है मुझे मैसेज करो, ये डाउट है या फिर यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट हो गया, अगर ऐसा लगता है तो, है ना। ऑल राइट, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।